Today we are studying about education and socialization. Meaning and concept of socialization. Meaning and concept of socialization. At the time of birth, human infant is just a biological organism with only animal needs and impulses. He knows nothing about what we call society or social behavior. As it grows under the careful guidance of mother, it learns to control bowel movement and regulate hunger. इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जो इन्फेंट बेबी होता है उसे सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। धीरे धीरे वह अपनी माँ के कांटेक्ट में आता है, अदर फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में आता है और वह सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को जानता है। तो यहाँ पर कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस like community, peer group, social, school, etc. These are the social institutions and educate the human child to be a responsible and useful member of society. The process of learning to internalize the values and norms into its self or the mode of learning to live in society is called the process of socialization. So we can underline it from the process of learning to internalize the value and norms into itself or the mode of learning live in society is called the process of socialization. यहाँ तक to internalize is to imbibe too deeply, that is becomes a part of the individual's behavior and personality. Therefore, socialization is basically the learning of socially desired values, norms and roles by the members of the particular group or society. So we can say that socialization is basically the learning यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इट मे बी डिफाइंड मोर कॉम्प्रिहेंसिवली एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकल्केशन whereby an individual learn the principles, values and symbols of social system in which he participates and the expression of those values and norms in the roles he enacts. The above discussion leads us in for some important characteristics of socialization. Characteristics of socialization. The first characteristic of socialization is it is lifelong process. It helps in the inculcation of principles, values and symbols of social system. Inculcations of principles, values and symbols of social system. It enables a person to enact certain roles. Then enact certain roles. The roles that one enacts are in accordance with what he has learned from the process. The roles a person enacts are the expression of his social nature. Next, the development of the social nature enable the person to participate in social life. Then, the nature of what one communicates in society is determined by the influence of one's interaction with the society. Most human behavior is learnt, not instinctive. The capacity of child to learn and to internalize is called the plasticity of human nature. Plasticity of human nature means कि जो बच्चा होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वह जन्मजात नहीं होता, नॉट इंस्टिंक्टिव। जन्मजात कोई भी बिहेवियर सीख के नहीं आता, वह यहाँ आकर उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है
कि वह समाज के साथ सीखता है। और इसको जो है, इसी को जो ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसी को जो है प्लास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर बोला गया है कि जो बच्चा है वह समाज जैसा होता है उसी के अनुसार सीखता जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन। द सोशलाइजिंग एजेंट, ऊपर बताया गया था कि सोशलाइजिंग एजेंट कौन से हैं, सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। स्कूल हुआ, फैमिली हुआ, फर्स्ट हुआ फैमिली, उसके बाद स्कूलिंग आता है, स्कूल हुआ आपका, पीयर ग्रुप हुआ, कम्युनिटी हुआ, नेबरहुड हुआ। तो ये सारे एजेंट्स हैं, ये सारे एजेंट्स हैं सोशलाइजिंग के। डज नॉट ट्राई टू टीच एवरीथिंग एट वंस, ही कंसंट्रेट्स on one task or on a few tasks at a time. Moreover, the process of accomplishing any one of the aims of socialization is gradual. Social scientists have earmarked 4 different stages of socialization from infancy to adulthood. These are, so we can say that there are 4 different stages of socialization from infancy to adulthood. These are oral stage, anal stage, oedipal stage and adolescence. We can study it in detail. Oral stage. Oral stage means, oral means mouth. तो ये जो ओरल स्टेज होती है इसमें जो बच्चे का जो फोकस पॉइंट होता है वह माउथ होता है। वह शकिंग करता है अपनी मम्मी के जो है दूध को और अपना जो है पेट भरता है। अब इसको देख लेते हैं। एट द फर्स्ट इज द इन्फेंट बिल्ड अप फेयरली डेफिनेट एक्सपेक्टेशन अबाउट फीडिंग टाइम एंड ही लर्न्स टू सिग्नल हिज प्रेसिंग नीड्स फॉर केयर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इन्फेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फैमिली एज ए होल, he is involved only in the subsystem consisting of himself and his mother. तो वह अपनी मम्मी से, अपनी मदर से जो है अपनी जो भूख की जो आवश्यकता है वह पूरी करता है फीड करके। तो ये जो है ओरल स्टेज हो गई क्योंकि वो फीडिंग कर रहा है अपने माउथ से। जो फोकस पॉइंट क्या हो गया, माउथ हो गया यहाँ पर। तो वो लर्न कहाँ से करता है, वो अपने माउथ से करता है। The second is anal stage. Anal stage of socialization cover the period between first and third year. वो हमारा जो ये जो फर्स्ट पीरियड था ओरल स्टेज, ये 0 to 1 था हमारा। इसको कह सकते हैं कि ओरल जो स्टेज है वो 0 to 1 ईयर है। ओरल जो स्टेज है वह हमारी 0 to 1 ईयर है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं एनल स्टेज। जो एनल स्टेज आती है वो बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर, यानी कि वो 1 से 3 साल के बीच में जो स्टेज होती है दैट इज एनल स्टेज। 1 से 3 साल के बीच में होती है एनल स्टेज। अब जो 1 से 3 साल के बीच में जो एनल स्टेज होती है, द एनल स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन कवर द पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। इसमें क्या होता है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। एनल स्टेज, एनल होता है गुदा मार्ग। टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस स्टेज। उसमें जहाँ पर फोकस था फीडिंग, और उसमें जहाँ पर फोकस था, फोकस पॉइंट था माउथ, और यहाँ पर क्या हो गया फोकस, टॉयलेट ट्रेनिंग देना बच्चे को। टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस स्टेज। जो 0 से 1 ईयर के बच्चे होते हैं उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको बोला जाता है कि जब जो है आपको टॉयलेट आए, सुसु आए, पोटी आए तो आप बताओगे, और उनको जो है जगह बताई जाती है कि यहाँ पर करना है, और उनको जो है आदत डाली जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग की, ताकि वो अपने आप बता सकें। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड इंटरनलाइज 2 रोल्स, हिज और हर ओन एंड दैट ऑफ हिज और हर मदर, नाउ क्लियरली सेपरेट। द चाइल्ड रिसीव्स लव एंड केयर एंड गिव्स लव इन रिटर्न। यहाँ तक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वह प्यार को समझता है और वो अपनी माँ से या अपने फैमिली मेम्बर से
प्यार को एक्सेप्ट करता है, उसको समझता है और खुद भी उस रिटर्न में जो है लव ही देता है, ममता देता है अपनी माँ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट है हमारी कौन सी स्टेज है हमारी, द थर्ड स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट द 14 ईयर टू प्यूबर्टी। जो हमारी जो थर्ड स्टेज थी दैट इज़ ऑडिपल स्टेज। अब जो ऑडिपल स्टेज का जो टाइम होता है वो इन्होंने बता रखा है, द थर्ड स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट द 4th ईयर टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि एडोलसेंस एज तक, 13 से 14 साल के बीच में ये एज मानी जाती है। यानी आपकी जो है 4 से 14 तक या 13 तक मान सकते हैं, और 14 के बाद जो है एडोलसेंस एज होती है, आफ्टर 14। नेक्स्ट है द थर्ड स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 4 ईयर टू प्यूबर्टी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम a member of the family as a whole. The child identifies itself with the social role ascribed to him or her on the basis of his or her sex. ये देखो इसमें बोल रखा the child identifies itself with the social role ascribed to him or her on the basis of her sex। यानी कि वह अपना जो है जेंडर पहचानने लगता है, उसमें इतनी सामाजिकता आ जाती है या उसका इतना सोशलाइजेशन हो जाता है कि वो अपना जेंडर पहचानता है कि वो बॉय है या गर्ल है, और उसी के अनुसार जो है अपना जो रोल है समाज में उसको जो है आइडेंटिफाइज वो करने लग जाता है। द फोर्थ स्टेज देखते हैं अब हम, एडोलसेंस एज है जो। द फोर्थ स्टेज बिगिन रफली एट प्यूबर्टी। At this stage, young boy or girl wants to be freed from the control of parents। आपने देखा भी होगा समाज में जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो वो अपने माता पिता से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक फ्रीडम उनको चाहिए होती है, वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट्स। द क्राइसिस ऑफ दिस period is precisely the strain produced by much greater demands for independence। ठीक है, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगते हैं। by the time the individual attains maturity major part of the socialization is over though it continues for whole of the life। तो इसमें क्या होता है, एडोलसेंस एज में बच्चा जो है फ्री महसूस करने लग जाता है, फ्री रहने की कोशिश करता है। बॉय या गर्ल जो भी है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग जो है उनका व्यक्तित्व बनता है अपने दोस्तों के बीच में, और उनको इस स्टेज में उनको जो है अपने जो है दोस्त जो है अपने फ्रेंड वो ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं और वो इंडिपेंडेंसी की डिमांड करने लगते हैं। जैसे बच्चों को देखा भी होगा जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं किशोरावस्था में 14-15 साल के, तो वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें भारतीय कॉन्सेप्ट में कि हमें अलग रूम चाहिए, हमारा अलग रूम होना चाहिए, मेरी भी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है। आजकल तो जो है सोशल मीडिया है और हमारे सामने इतने सारे जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन है लाइक फ़ोन, तो वो बच्चे जो है डिमांड करने लगते हैं कि हमें अलग से फ़ोन चाहिए। तो यही आएगा इसमें एडोलसेंस एज में। तो दीज आर द, देख लेते हैं अभी एक समरी टाइप कि स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन क्या हुए। तो देर आर 4 स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, ओरल, एनल, ऑडिपल एंड एडोलसेंस। इनके जो है वो ईयर लिख रखे हैं, ये देख लेना आप। तो ये हो गए हमारे व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड 4 स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देर आर 2 ब्रॉड ग्रुप ऑफ सोशलाइजेशन, या वे कह सकते हैं कि वी कैन क्लासीफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आगे बताया हुआ है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है उसमें जो है प्राइमरी नीड्स होती हैं, हमारी प्राइमरी नीड्स जब फुलफ़िल होती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। और आगे जो है प्राइमरी
सोशलाइजेशन के एजेंट्स भी दे रखे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी दे रखे हैं। देखते हैं, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स। तो ये जो डिवीजन करा हुआ है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये किसके बेस पे किया हुआ है? बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। द बेसिक फिजिकल नीड्स सच एज, हमारी जो बेसिक फिजिकल नीड्स होती हैं, हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, दैट इज भूख प्यास को शांत करना, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइमरी नीड्स, वाइल सेकेंडरी नीड्स आर दोज विच एमर्ज टू मीट प्राइमरी नीड्स। और हमारी सेकेंडरी नीड्स क्या होती हैं? द नीड फॉर लर्निंग स्किल्स टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी मतलब हमें कैसे रहना है, उस रहने के लिए हमें क्या अर्न करना है, यानी कि हम अपनी जो लाइफ जिएंगे उसको हम कैसे जिएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए। नीड फॉर लर्निंग स्किल्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आती हैं। फैमिली सेटिस्फाइज द, अब आगे देखो ये इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं या एजेंट्स दे रखे हैं कि प्राइमरी के कौन से हैं और सेकेंडरी के कौन से हैं। ये देखिए, फैमिली सेटिस्फाइज द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। वेयर एज ए स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशल, स्कूल क्या हुआ? स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशल institution because it meets the derived needs of the children. The parents are primary socializing agents। ये देखो जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं ऑफ द चाइल्ड, वेयर एज द स्कूल टीचर्स आर द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गए? ये देखिए, एजेंट्स को अलग कर लेते हैं। एजेंट्स हो गया हमारा, इसका प्राइमरी का हो गया फैमिली, ठीक है, और इसका सेकेंडरी का हो गया स्कूल टीचर, ये हो गया पेरेंट्स, ठीक है, प्राइमरी का एजेंट हो गया पेरेंट्स और सेकेंडरी का हो गया स्कूल टीचर्स आर द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर है इनकल्केशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज विद इन द फैमिली इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं सोशलाइजेशन को, तो आप बताएंगे कि 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके बाद हम इनके जो एजेंट बताएंगे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राइमरी जो नीड्स होती है, सबसे पहले हम प्राइमरी नीड्स के बारे में बताएंगे। तो एक तो हमारा जो इसमें कैटेगरी बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी नीड्स की, ठीक है। फिर हमारी एजेंट्स की बन जाएगी कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, दोनों के ही। तो इस तरह से हमारे ये डिवीज़न हो जाएगा, सब डिवीज़न। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन वाइल द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ स्कूल में बी कॉल्ड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और उसके बाद जो है इन एजेंट्स और ये जो हमारे जो होते हैं नीड्स जो होती हैं, नीड्स और एजेंट्स को बताते हुए हम आगे लिखेंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे हम, यहाँ से जोड़ सकते हैं इनकल्केशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इनकल्केशन मतलब समाहित होना, एक तरह से सीखना। इनकल्केशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नॉर्म्स जो हमारे मापदंड होते हैं, जो हमारे मानक होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है सोसाइटी में कि हमें ये सीखना है, हमें समाज में सर्वाइव करने के लिए ये स्टैंडर्ड है या ये सीखना है या ये वैल्यूज़ हैं विद इन द फैमिली इज़ कॉल्ड। तो जो फैमिली के अंदर जो नॉर्म्स, जो मापदंड और वैल्यूज़ होते हैं उसको जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। जबकि प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ स्कूल, जबकि जब बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल के जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होते हैं और उसके अनुसार वह बिहेवियर पैटर्न सीखता है, उसको हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक। प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इन्फेंसी, आगे स्टेजेस दे रखी हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो आप इतना ही लिखेंगे इसमें। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ, आगे इसमें स्टेजेस वगैरह दे रखी हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
इन द मॉडर्न सोसाइटीज आगे दे रखा है कि व्हाट इज़ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और यहाँ पर एक जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन भी दे रखा है, जिसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं या मॉडर्न जो हमारे सामने मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं उनसे, और जो है हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकें उसके लिए जो है हम जो है कुछ नई वैल्यूज़ को, कुछ नए नॉर्म्स को सीखना चाहते हैं। और वो जो नए वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं ये देखते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी वेयर द सोशल मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टेक्स प्लेस मोर फ्रीक्वेंटली, इंडिविजुअल्स लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप वीकेंड्स। जो हम किसी ग्रुप से जब हम आते हैं, हमारा जो कल्चर होता है उससे हम बंधे नहीं रहते, ठीक है। ही स्टार्ट्स, तो वो जो बंधे नहीं रहते तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्ट्स यानी ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एमुलेटिंग द वैल्यूज नॉर्म्स बिहेवियर पैटर्न्स, एमुलेटिंग बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ अनदर ग्रुप। तो वो दूसरे ग्रुप के हम उनको जो है ग्रहण करना चाहते हैं, एंटिसिपेशन ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एज इट्स मेंबर, हम दूसरे उसको ग्रहण करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, मान लो कोई व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई और वह है अमीर बन गया। तो अमीर बनने के बाद वो जो अमीर जो ग्रुप होता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, उसी के जो कल्चर हैं वो उनको जो है फॉलो करना चाहेगा। तो इसी को एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द individual are determined with reference to a particular group or groups. For example, individuals who have acquired wealth suddenly try to follow the value and reference group theory, मतलब जिस ग्रुप में वह आ गया है या जिस ग्रुप में जैसा वह बनना चाहता है, that reference group, उसकी उसी की तरह वह अपना कल्चर डेवलप करना चाहता है या डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। ये आगे वही एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल हु हैव एक्वायर्ड वेल्थ suddenly try to follow the values and lifestyle of upper strata of society, they tend to change their, ये देखो कैसे चेंज करता है वह, अपनी ड्रेस में चेंज करके, बिहेवियर में, इवन देयर लैंग्वेज एंड कस्टम। तो इन सब को जब वह अडोप्ट करता है तो ये हो गया कि वो स्पेशल या उस रेफरेंस ग्रुप से वह अडोप्ट कर रहा है, वहाँ उस रेफरेंस ग्रुप की ड्रेस, उस रेफरेंस ग्रुप की बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कस्टम को एडोप्ट कर रहा है, और इसी प्रक्रिया को एंटिसिपेशन सोशलाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे स्टार्ट डिमांडिंग, ये आगे दे रखा है कुछ, डिमांडिंग डोरी, फोर्स देयर वुमेन फोक टू ऑब्जर्व पर्दा और अनदर डिस्टेंसिंग कस्टम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, तो अभी हमने ये जो पढ़ा है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि सोशलाइजेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। आगे जो है थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन है आपकी यूनिट 1 में। तो इस तरह से हमने इस यूनिट में कवर किया है। देखते हैं, तो इस यूनिट में हम कवर कर पाए हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन में, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन क्या होता है, एजुकेशन और सोशलाइजेशन किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन करेंगे, जिसमें फ्रॉइड की है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, कूलेज की है और मीड्स की है। तो हम फ्रॉइड्स की थ्योरी करेंगे और कूलेज की थ्योरी करेंगे। आगे ये हमारा कवर हो गया है कि एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कौन से होते हैं, एजेंसीज यानी एजेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशलाइजेशन के, ये हम कवर कर चुके हैं। इसमें फैमिली होता है, पीयर ग्रुप होता है, स्कूल, मास मीडिया,
तो ये किस तरह से हमारे जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं, या हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सभी एजेंट्स हमें बताते हैं। ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी कूलेज पर, मीड्स थ्योरी पर और फ्रॉइड्स थ्योरी पर।